Hello students, welcome to the class of English literature. Today we are going to discuss a poem, Words by Edwin Thumboo. Edwin Thumboo was born in 1933 in Singapore. He was a distinguished, most renowned poet. His first work was published in 1972, Child's Delight. Ulysses by the Merlin was his first most famous work. He wrote another famous work, Rib of Earth, Gods Can Die, Still Traveling, etc. Edwin, his full name was Edwin Nadasen Thumboo. He was a great poet and academic who is regarded as one of the pioneers of English literature in Singapore. Thumboo graduated in English from the University of Malaya in 1956. Although he applied for a position at the university, he was rejected as few locals held academic posts at the time. He therefore worked in the civil service for about 9 years before finally joining the university. Then renamed the University of Singapore in 1966 following Singapore's independence. He received a PhD from the university in 1970. Thumboo rose to the position of full professor in the Department of English Language and Literature, heading the department between 1977 and 1993. After the merger of the University of Singapore and Nanyang University in 1980 to form the National University of Singapore, he was the Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences from 1980 to 1991. NUS's longest serving dean. Thumboo was the first chairman and director of the university's Center for the Arts from 1993 to 2005 and continues to be associated with the university as an emeritus professor, a position he has held since retiring from full-time teaching in September 1997. Thumboo's poetry is inspired by myth and history, and he is often dubbed Singapore's unofficial poet laureate because of his poems with nationalistic theme. Pioneer of a local English literature, he compiled and edited some of the first anthologies of English poetry and fiction from Singapore and Malaysia. His own collections of poetry include Rib of Earth, Ulysses by Merlin, and A Third Map. His latest anthology, A Gathering of Themes, was published in 2018, and his collected works, The Best of Edwin Thumboo, was published in 2012. Thumboo has won the National Book Development Council of Singapore Book Awards for poetry 3 times in 1978, 1980 and 1994. Text of the poem, Words. Words are dangerous, especially the simple kind you leave behind for others. For undesirable relatives and assorted purposes, they are understood simply, edited, taken with a kind of air, a careful disregard. Their plainness complicates. Words are dangerous. Words dangerous होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं जब हम दूसरों के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, पीछे से उनकी पीठ पीछे किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के साथ में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उनके लिए कुछ कहते हैं, तो वो वाले वर्ड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं, वो उसे जा कर के मैनिपुलेट करके या बढ़ा चढ़ा करके उसे उन को मॉडिफाई करके उन वर्ड्स को बताता है और उनका पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं।
वर्ड्स आर डेंजरस, स्पेशली द सिंपल काइंड यू लीव बिहाइंड फॉर अदर्स। वो वर्ड्स जो आप दूसरों के लिए पीछे छोड़ते हैं। फॉर अनडिजायरेबल रिलेटिव्स, क्योंकि कुछ अनडिजायरेबल रिलेटिव्स ऐसे होते हैं। एंड असोर्टेड पर्पजेज, उनके कई पर्पजेज होते हैं जिनके कारण वो आपके वर्ड्स को मोड़ तरोड़ के दूसरे के सामने पेश करते हैं। दे आर अंडरस्टूड सिंपली, उन वर्ड्स को सिंपली जो लिटरल मीनिंग है वही समझाते हैं। एडिटेड, उनको एडिट कर देते हैं। टेकन विद द काइंड ऑफ एयर, इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करते हैं उनका। अ केयरफुल डिसरिगार्ड देयर प्लेननेस कॉम्प्लिकेट्स, और उनकी सिंप्लिसिटी जो है वर्ड्स की वो पूरे तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उसे। नेक्स्ट स्टेंजा, when you say tell him please that the anger has come to pass, that friendship is not maimed, or please do come but after the fever has been put aside. When you mean to be polite, careful, explicit, considerate, circumspect, adopting the proper tone, you are likely to be quoted as saying he won't. एक बार जो बात मुझसे निकल जाती है, जो वर्ड्स निकल जाते हैं, वो कभी भी लौट करके वापस नहीं आ सकते। हम अपनी इमेज को वापस करेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा होता है गुस्से में, बहुत बार हमारे मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है। हम कहते भी हैं कि सब हमने गुस्से में कहा, लेकिन हमारी इमेज एक बार खराब होने के बाद में दोबारा से वो वैसी नहीं रहती है। तभी पोइट यहाँ पे कहता है व्हेन यू से टेल हिम प्लीज, जब आप कहते हैं कि टेल हिम प्लीज दैट द एंगर हैज कम टू पास। सपोज कि आप अपने फ्रेंड से लड़ ली और आप कहो कि गुस्सा था वो आकर के चला गया, दैट फ्रेंडशिप इज नॉट मेम्ड, हमारी फ्रेंडशिप इस वजह से खराब नहीं होगी। मेरे वर्ड्स को सीरियसली मत लेना, मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा। और प्लीज डू कम बट आफ्टर द फीवर हैज बीन पुट असाइड, प्लीज दोबारा से आना, दोबारा से हम फिर से वैसे ही दोस्त रहेंगे। When you mean to be polite, अगर आप एक बार गुस्सा करने के बाद में, एक बार एंग्री वर्ड्स कहने के बाद में फिर आप पोलाइट बनते हैं, केयरफुल बनते हैं, एक्सप्लिसिट बनते हैं, कंसिडरेट बनते हैं, सर्कमस्पेक्ट बनते हैं, सर्कमस्पेक्ट मतलब प्रूडेंट बनते हैं, एडॉप्टिंग द प्रॉपर टोन और प्रॉपर वे में बात करते हैं, यू आर लाइकली टू बी कोटेड एज सेइंग ही वांट। लेकिन फिर भी वो अगला आपके बारे में क्या सोचेगा, नहीं, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भरोसे के काबिल व्यक्ति नहीं है। एक बार इमेज खराब होने के बाद में वो दोबारा सही नहीं होती है। और वर्ड्स एक बार कह दिए जाएं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बुरा ही पड़ता है अगले पे। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए हमें। वर्ड्स आर नाइदर वैलिड, मर्सीफुल नॉर बैड इन themselves, nothing unless used, urged, important into dialogue, becoming part anger, part laughter, breezed, adding to the mood and gesture. न तो वर्ड्स वैलिड होते हैं, मर्सीफुल होते हैं, न ही खराब होते हैं। वर्ड्स का इंडिविजुअल कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक इंडिविजुअल वर्ड की अपने आप में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इन themselves nothing unless used, जब तक कि उनको यूज़ नहीं किया जाए सेंटेंस में तब तक उनका कोई मीनिंग नहीं है, तब तक उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अर्ज्ड, इंपॉर्टेंट इनटू डायलॉग, जब तक कि उन्हें डायलॉग फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाए, जब तक कि उनमें फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो नहीं आए, तब तक कि वो कोई यूज़फुल नहीं रहते हैं। बिकमिंग पार्ट एंगर, जब तक कि वो गुस्से का भाग ना बने, पार्ट लाफ्टर, हंसी का भाग ना बने, बरीज एडिंग टू द मूड एंड जेस्चर, तब तक उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। वर्ड्स आर वर्ड्स एक्सेप्ट फॉर अस, दे आर नॉट पर्सनैलिटीज, वी मेक देम इनटू पोएम्स। वर्ड्स की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है। पोइट जो होते हैं पोएम्स क्रिएट करते हैं और अपनी क्रिएशंस के अंदर उनको पर्सनैलिटी देते हैं, उनका
खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती, एक इंडिविजुअल वर्ड की कोई भी पर्सनालिटी नहीं होती, वो अदर वर्ड्स के साथ में मिलके ही, और पोएम्स के अंदर जो पोइट है उनके अंदर फीलिंग्स को सफ्यूज करते हैं, तब जाके उनका कोई मीनिंग निकलता है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस होती है। थैंक्स अ लॉट।